Hello, guys. Welcome to the fifth episode of the Unnamed Football Podcast. Again, Samar is back with us, and Vedanta, as always, is here, present in flesh. So, for both of you, how has your week been? Starting off with you, Samar. My week has been pretty good. Thank you so much. My week started with a United win against Bournemouth, it was pretty nice, and it's been going really good so far. I hope you had a good week too, because I think Leicester stole 1 point from Newcastle, and you guys are still optimistic for staying in the league. So yeah, Vedant? Optimism doesn't exist, man. Uh, 1 point, yeah, we have managed to take 1 point from Newcastle, but uh, the fate is out of our hands now. It all depends upon Everton's match, Everton versus Bournemouth, and yeah, if Bournemouth manages to defeat Everton, or even if they hold Everton for a draw and we are able to beat West Ham, we are through. So the only optimism that was gathered from Newcastle's match was that we at least increased our chances to stay in the Premier League, because if we would have lost the match, then it would have been that Everton needs to lose. Not even a draw would have sufficed for us. So yeah, and then looking at the past history, Bournemouth are undefeated in the last four matches against Everton, but at Goodison Park, you obviously back Everton to defeat Bournemouth. हाँ मतलब वी but आर जस्ट बाइडिंग टाइम इस पॉइंट पे अभी क्या होने वाला है देखते हैं हाँ या समर कुछ बोल रहा था I just wanted to add 1 point. I think Leicester will have a easier chance to beat West Ham because there is a possibility that West Ham, might rest a few important players because they are in the Conference League final. So we could see that, and I think West Ham has not, not a huge motivation like Leicester on the final game day to get really something out of the game. So there is a chance that you might see changes, and maybe Leicester can grab onto it. It's their home game. It's the last match, so maybe you guys will be in the league again. लास्ट डे Nice. जब लास्ट डे जब हम मैंने लाइनअप देखा ना मैंने मैंने सोचना ही बंद कर दिया एक्चुअली कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा हाँ 0-0 ड्रॉ साउंड्स फैंटास्टिक क्योंकि हारे नहीं बट अगर एवर्टन की सिचुएशन देखा जाए और अपना जो अटैक था लास्ट गेम में पूरा लैकलस्टर का बाप था तो देखते हैं क्या होता है बट आज का You know, टॉपिक आप मतलब व्यूअर्स ने तो देखा ही होगा कि वी आर बेसिकली फोकस्ड ऑन प्रीमियर लीग तो आज थोड़ा सा अलग तरह का ट्राई करते हैं सीरिया के बारे में बात करते हैं आई थिंक एवरीबडी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सीरिया एज मच दे डू विद ला लीगा तो सीरिया में मुझे तो लग रहा है कि काफी बढ़िया कंपटीशन हो रहा है क्योंकि इनके पास पहली बात तो सब जो बोलेंगे ऑब्वियसली बात पैसे नहीं है और पैसे के बिना टू compete एंड बी इन कॉम्पिटिशन्स लाइक पूरा कंपटीशन को खेलना और फाइनल में पहुंचना आई थिंक इट्स अ बिग टेस्टमेंट टू इटालियन फुटबॉल और ये तो आज से नहीं है मतलब काफी सालों से पीपल जस्ट लुक अप टू सीरिया एंड विद द डिफेंसिव प्ले स्टाइल्स इटाली को जैसे मानते हैं कि दे आर अ बिग टीम यूरो जीतने के बाद वो बात और झलक के आई हालांकि वर्ल्ड कप में थी नहीं बट आस्किंग बोथ ऑफ यू द सेम क्वेश्चन कि लास्ट आप अगर 4 या 5 इयर्स भी आप अगर देखोगे सीजन वाइज प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी मोस्टली डोमिनेटेड बुंडेसलीगा में हमको पता है हमको लीग वन में पता है ला लीगा में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं बट मेनली बिटवीन द थ्री टॉप साइड्स बट सीरिया में इंटरेस्टिंगली 2019 और 20 के बाद जुवेंटस ने दो मतलब जुवेंटस तो जीत रही थी काफी कॉन्सिक्यूटिव टाइटल जीता 2011 से लेकिन उसके बाद एक एक शिफ्ट हुआ कि इंटर मिलान जो जीता उसके बाद फिर एसी मिलान फिर नापोली इस साल जीत रही है तो 4 डिफरेंट चैंपियंस इन 4 डिफरेंट सीजन which is a very good thing for neutrals तो हाउ डू यू थिंक द बैलेंस हैज शिफ्टेड लाइक अभी भी अगर आप टेबल में देखो तो पक्के खिलाड़ी भी उस यूरोपियन स्पोर्ट्स में है नहीं जैसे रोमा भी एक एक अभी कुछ दिनों पहले भी बाहर थी यूवेंटस को फिर पॉइंट डिडक्शन मिला और वो लोग साथ में चले गए वरना 2 पे थी
So starting off with Napoli, what does this Napoli title means to you individually? We should लेस्टर look at. सिटी एज अ लेस्टर सिटी फैन डेफिनेटली मतलब नेपोली का टाइटल वैसे स्पेशल हमेशा लगता है कि जब कोई टीम नॉर्मल जो नेम्स हमेशा आ रहे हैं उनके अलावा कोई और टीम जब सक्सेस को ग्रैब करती है तो वो ज्यादा इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग लगता है एंड हाउएवर जो दूसरी चीज तूने कही कि सीरिया इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे हो रहा है प्रीमियर लीग के कंपैरिजन में, इसमें सबसे बड़ी बात मुझे लगता है मनी इन्फ्लक्स का ही है, क्योंकि वहां पर वो 5-6 क्लब्स में मनी इन्फ्लक्स ज्यादा है, यहाँ पर उतना ज्यादा डोमिनेंसी नहीं है उन 5-6 क्लब्स की कि इनमें बहुत ही ज्यादा पैसा आ रहा है ना। उन 5-6 क्लब्स में भी जैसे प्रीमियर लीग में तो देखेगा कि डिफरेंसेस हैं, मतलब टॉटनहम हॉटस्पर उतना नहीं खर्च रहा जितना मैनचेस्टर सिटी खर्च रहा है, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड जितना खर्च रहा है उतना लिवरपूल नहीं खर्च रहा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं एक्सपेंडिचर में, वो चीज आपको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं दिखेगी सीरिया में। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जब एक तरह की ही आपकी बाइंग कैपेसिटी हो तो जो कंपटीशन होता है वो डेफिनेटली ऑन द पिच भी काफी हद तक सिमिलर आपको दिखेगा, उसकी वजह से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो नेपोली की सक्सेस इंटरेस्टिंग, और आई थिंक सीरिया कुड बी द फ्यूचर अगर प्रीमियर लीग अपनी स्टेलनेस जो हम हमेशा बात करते हैं वो 6-7 क्लब्स के अराउंड नहीं रिमूव करेगा, तो आई आई सी सीरिया कुड बी द फ्यूचर की जो पहले प्रीमियर लीग के बारे में बात करते थे कि अलग अलग यहाँ पे अपसेट्स होते हैं, ये होते हैं, वो अब आपको सीरिया में ज्यादा दिख रहे हैं, तो हु नोज सीरिया कुड बी द फ्यूचर। समर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब पिछला क्वेश्चन भी स्टैंड करता है बट थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर। जैसे तुम लोग बहुत ट्रांसफर स्काउटिंग ट्रांसफर इन सब में बिजी रहते हो और प्रीमियर लीग के हर क्लब रहती है, चेल्सी स्पेशली। तो हाउ डू यू रेट अ साइड लाइक नापोली, जो इस सीजन के पहले इतना बड़ी कुछ थी भी नहीं क्योंकि वो माराडोना का लेगेसी चल रहा है, उसके बाद से कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, बट दे ब्रिंग इन लाइक दे डेवलप विक्टर ओसिमेन और ये किविचा क्वाराशेलिया को लाते हैं। वो देख के कि ये कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, इट्स वेरी मच लेस्टर लाइक इन द 2016 सीजन, बट आई डोंट नो, मतलब रियाद माहरेज से मुझे तो ऑन पार लेवल्स लग रहा है कि किविचा जो आया है ही इज अ सुपर्ब स्टार। तो आपने जितना एब्जॉर्व किया इस सीजन को, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस टू एक्विजिशंस एंड मेनी मेनी अदर्स, क्योंकि कीम के साथ भी आप लोगों का अभी बात चल रहा है कि वो सेंटर बैक आ सकता है, तो योर टेक। आई थिंक नापोली के जो मेन प्लेयर्स थे पहले, मोर्टन्स करके जो था, फिर इंसानिया था और कोलोबाली था, तो ये जो सारे उनके मेन प्लेयर्स थे वो दे लॉस्ट ऑल ऑफ देम बेसिकली ट्रांसफर विंडो में। और फिर उसके बाद और स्पेसिफिकली ये जो ईयर था तो लाइक देयर वाज लाइक नॉट अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम नापोली। किसी को नहीं लगा था कि नापोली जाके जीत जाएगा। और वो जो पार्टनरशिप की तुम बात कर रहे थे, विक्टर ओसिमन की और दैट जॉर्जियन प्लेयर, तो yeah, it was great, और like no one gave them a chance, but जितना मैंने देखा नापोली को, उनका जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल है या फिर उनका जो इंटेंट था, it was really different from the other teams, and I don't know, yeah, they got the results and they won the league as well, so yeah, it's great. तो रही बात स्काउटिंग की, तो या मतलब मैंने एक वीडियो भी देखा था, तो मतलब आई सॉ समवन्स वीडियो, आई डोंट रिमेम्बर द पर्सनस नेम, बट देन वहां पे वो यही डिस्कशन कर रहे थे कि दिस गाय वाज डिस्कसिंग दैट हाउ Napoli's like scouts found this Georgian guy and this uh, and they found him exactly after like they lost Mertens and Insania and everything, because पहले ये 3-4 प्लेयर्स के आजू बाजू ही मतलब नापोली की टीम थी, या नापोली like were never a big team, but they were not a small team too. They were always like trying, they were always like trying to compete for the Champions League, या फिर they were trying to compete for the Europa League, so they were a European regular, but yeah, it was good बट overall, I'd say. इस सीजन
अगर हम फिर से देखें ओवर द टेबल तो हमें दिखेगा कि लाज़ियो ने काफी तगड़ी कोशिश की। आई थिंक इट्स द बेस्ट चार्ज इन इयर्स। और लाज़ियो इज द ओनली टीम जिनका नाम इतना आता नहीं है। जैसे बात नहीं यार तू। तो लाज़ियो का जो नाम अभी टॉप यूरोपियन कंपटीशन या अक्रॉस द 5 लीग्स या न्यूट्रल्स के लिए भी एज सच मैंने देखा नहीं है कि लाज़ियो को कोई बड़ा टीम कंसीडर करते हैं, बट दे आर इन द मिक्स, दे हैव ऑलवेज बीन इन द मिक्स। बट क्या लगता है तुम दोनों को कि लाज़ियो का मतलब हमेशा से आइडेंटिटी क्राइसिस या सिर्फ वन ऑफ जो रोमन डर्बी होता है उसके सिवा कोई नाम नहीं आता? प्लेयर्स तो ठीक ठाक ही रखे, इतना इतना बुरा भी नहीं है, सैवेज फिर इमोबिले, बट पास में भी देयर वर गुड प्लेयर्स। तो कहाँ इनसे कंपटीशन छूट जाती है? पेड्रो भी है उनमें और फिलिप एंडरसन भी है। और मुझे लगता है लाजियो लाइक हैज डन रियली वेल। आई थिंक ये सेम चीज मैं मेरे दोस्त को कह रहा था 2 या 3 हफ्ते पहले। सेम चीज कार में था मैं, तो मैंने उसको सेम चीज कही। मैंने बोला यार लाइक लाजियो इज रियली अंडररेटेड। और लाजियो का जो मैनेजर है मॉरिसियो सारी, ही इज वेरी अंडररेटेड टू, यू नो। I don't know, like whenever there's a managers discussion, and like off late उसका कभी नाम नहीं आता यार। I don't know why, he's very underrated, he's done a good job। वो नापोली में बहुत अच्छा काम किया था उसने। चेल्सी में उसको एक ही सीजन मिला, he got top 3 and then he won Europa League with them। So he did everything which was possible। Juventus में भी जाके he won the league and I think he's the last Juventus manager जिसने लीग जीता था, correct me if I'm wrong। And और फिर तो मतलब यार ऑफ कोर्स यू नो दिस गाय इज वेरी अंडररेटेड एज वेल। एंड पूरी लाजियो की टीम ही ऐसी है। आई थिंक वन मेजर रीजन कैन बी लाइक लैक ऑफ सिल्वरवेयर to show। That is one major reason maybe for Lazio to be not there। They had a good chance in Conference League। I saw both their legs against AZ Alkmaar and they were not able to, you know, like hold on to those crunch moments and finish the game। एंड दे गॉट आउट। बट ओवरऑल अगर तुम देखो लीग में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, दे प्लेइंग रियली गुड। बट यही है कि अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, क्योंकि वही है ना कि लाइक नो वन रिमेम्बर्स हु फिनिश सेकंड और थर्ड। तो वही बात है बस। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कंटिन्यू। ग्लोबल व्यूअरशिप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना सीरिया में। मतलब अगर आज की डेट में सेकंड जैसे आर्सेनल जो फिनिश कर रहा है, अगर आप उसको कंपेयर सेकंड विद लाजियो करो, आप देखो कि उसको कितनी व्यूअरशिप मिली है और उसको कितनी क्रेडिबिलिटी की। अब यहाँ पे सब डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टेटा ने ऐसा काम किया, ये ऐसा ये वैसा, लेकिन कोई लाजियो के बारे में बात ही नहीं कर रहा। जबकि लाजियो का सेकंड आना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसको अंडर द कारपेट कर दिया। सीधी सीधी बात है कि जो फॉलोइंग है लाजियो की, वो इन सब क्लब्स के कंपैरिजन में काफी कम है। तो उसको वो नहीं मिल रही क्रेडिबिलिटी कि हाँ इन्होंने भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। और डेफिनेटली अब जैसे फेलिपे एंडरसन को आप ले लो। फेलिपे एंडरसन वेस्ट हैम के अंदर कितना फेल्ड प्लेयर था, नहीं चला बिल्कुल भी, बट लाजियो के अंदर एक अलग ही प्लेयर बन के दिख रहा है वो। अब इमोबिले का तो सबको ही पता है। इमोबिले इतना ऐसा नहीं है इनके पास इमोबिले जैसा बड़ा नाम है। इमोबिले कोई छोटा नाम नहीं है, बट वो सारी की सारी बात कवरेज की है। इनको इतनी कवरेज मिली नहीं, उसकी वजह से इनका जो अचीवमेंट है उस पर इतना ध्यान नहीं गया। मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है, तूने जो बोला साड़ी की बात, साड़ी की है, साड़ी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हम्म। मर्जियो एक एक ट्रेडिशनल सेंस में प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं खेला है, ठीक है। सो हम्म। हाउ डू यू थिंक कि वो अगर कोच बनता है तो प्लेयर्स का मेंटालिटी या उससे ऑर्डर्स लेना इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी कैसे एक टीम को अफेक्ट करता है? क्योंकि साड़ी का मुझे यही लगा है जो समर बोल रहा था कि उसको वो ड्यू क्रेडिबिलिटी या टॉप मैनेजर्स में कंसीडर ये किया नहीं जाता। मुझे सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि बिकॉज ही वाजंट अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर। उसने ना इंटरनेशनल्स खेला है, ना ना प्रो गया है, वो एमेचर लेवल पे खेला है। एंड इट्स अ वेरी, आई अंडरस्टैंड लाइक तुम रोनाल्डो को मैनेज कर रहे हो एंड यू डोंट इवन नो हाउ टू प्ले फुटबॉल इन द प्रोफेशनल लेवल। तो उसमें एक तो माइंडसेट काम करता है कि वर्ल्ड के ग्रेट्स आपसे क्यों कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लेंगे। बट डू यू थिंक दैट इज अ वेरी प्रिमिटिव ट्रेडिशनल टैबू, या तुमको लगता है कि नहीं इस बात में सेंस है और प्लेयर्स का ईगो ऑलवेज बीच में आएगा? मुझे लगता है कि ये जो टैबू था ना, वो सबसे पहले मोरिनियो ने ब्रेक किया। अगर आप मोरिनियो को भी देखो, वो कहाँ खेला उस लेवल के ऊपर। उसके पास जितना मुझे पता है फिजिकल साइंस है ऐसे कुछ में, उसकी लिस्बन यूनिवर्सिटी से डिग्री है। और उसके अलावा वो नहीं खेला प्रोफेशनल। वो शायद थर्ड टायर में या कुछ ऐसे टायर में कुछ था प्लेयर, बट बहुत एवरेज प्लेयर था।
और उसने बहुत यंग उसमें रिटायरमेंट लेके सोचा कि मैं नहीं खेल सकता, आई एम नॉट दैट दैट गुड अ प्लेयर, एंड ही इवेंचुअली वेंट इनटू मैनेजमेंट। तो जब होजे मोरिनियो जैसा प्लेयर जो कि उस लेवल पे कभी compete भी नहीं किया और इतना बड़ा मैनेजर बन सकता है, तो डेफिनेटली मोरिजियो सारी भी बन सकता है। और जितना आप वैसे अगर देखो, फुटबॉल को एनालाइज करो, फुटबॉल, यस, मेंटालिटी सेंस में कभी कभी प्लेयर्स को एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करने के लिए मुझे लगता है कि आप बेटर कर सकते हो अगर आप साइकोलॉजिकल सेंस में, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से आता हूं, तो मैं बिहेवियरल साइंस के बारे में बात करूं, तो अगर कोई एक आपका पेशेंट है, अगर कोई फॉर एग्जांपल XYZ सिनेरियो से अंडरगो कर रहा है, और अगर आप एज अ डॉक्टर उस सिनेरियो से अंडरगो कर चुके हो, तो यू अंडरस्टैंड द पेशेंट ऑन अनदर लेवल, राइट? तो वो सेम चीज गोज फॉर द फुटबॉल मैनेजर ऑल्सो, कि अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम्स एक प्लेयर फेस कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर प्लेयर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो मैनेजर उसको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। लेकिन शेयर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है फुटबॉल साइंस एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है, क्योंकि आप ऐसे बहुत मैनेजर्स भी आपने देखे हैं जो कि शायद पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छे प्लेयर रहे हो, राइट? लाइक फ्रैंक लैम्पार्ड, विच इज द मोस्ट रीसेंट एग्जांपल, और वो कभी भी, अभी देख लो ना आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो मैनेजरियल सेंस में। तो मुझे लगता है कि हाँ करता है, बट अगर आपने उस लेवल पे अपने आप को प्रूफ कर दिया, तो देर इज नो वे। अब मोरिनियो को कौन क्वेश्चन करता है? अब हम्म। रोनाल्डो के करियर में मोरिनियो का बहुत बड़ा हाथ है। रोनाल्डो, अगर आप करियर रोनाल्डो का देखोगे, तो आप हमेशा मोरिनियो को एक सिग्निफिकेंट हैंड उसमें देखोगे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये है। ठीक है, तो गुड गुड पॉइंट्स तुम दोनों से। अब तो बात करना होगा मिलान के बारे में, एसी मिलान इंटर मिलान। अ, जो हमने देखा ओवर द कोर्स ऑफ चैंपियंस लीग 2 लेग, अब बहुत लोगों ने सीरिया में नहीं फॉलो किया होगा, बट ओवर द 2 लेग्स तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें दिखा कि एसी मिलान जो चैंपियंस है, करंट होल्डर्स ऑफ द स्कुडेटो, क्या वो बात दोनों मैच में एक बार भी सामने आया, या इट वाज जस्ट कि they didn't have enough options available to the manager, या सिंपली इंटर मिलान बेटर थी? Well, if you ask me, मुझे पहले तो ऐसा लगा फर्स्ट लेग में उन लोग के पास रफाएल लेओ नहीं था, तो हम्म। उन लोग का जो मेन प्लेयर है, मेन विंगर है, आई मीन, तो स्पेसिफिकली अगर मैं इंटर मिलान की बात कहूँ, तो फ्यू वीक्स बैक दे लॉस्ट अ गेम टू मॉन्जा एट होम, एंड देन उसके बाद से आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू इंटर मिलान. दे स्टार्टेड प्लेइंग वेरी डिफरेंटली, दे स्टार्टेड स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, they started playing very good away from home, and then they peaked at the right time. Inter Milan has been doing well this season, ऐसा नहीं है, but I don't know, they peaked at the right time, और फिर हाँ, जब मतलब आपने मैच भी देखा, तो you could see कि Inter Milan took their chances, were able to finish them off. अगर मैं सेकंड लेग की भी बात करूं, तो उसमें एक ही गोल आया 75th मिनट में, पर अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे वो मैच को, फर्स्ट 15 मिनट्स अगर आप जब देखते हो, तो यू गेट टू नो कि हाँ, इंटर मिलान वर डोमिनेटिंग, दे वर मोर डोमिनेटिंग, बट द टैक्टिक्स वर मच बेटर, द अटैकिंग वाज मच बेटर, और लोटारो मार्टिनेज है, लुकाकू है, मिकहितारियन है, डामियान है, तो yeah, or the most funniest part is Lukaku, Mkhitaryan, uh, Damian. All this were part of Manchester United once, and they were like asked to let go as Deadwood. They were asked to let go, and they're in Champions League final now. That's amazing. वेदांत, अगर ये लोग चैंपियंस लीग जीत जाते हैं, ठीक है, हम्म। बहुत कम चांसेस है, बट हमने पहले भी देखा है चांसेस पे फाइनल्स डिसाइडेड होती नहीं है। अगर मिनिस्क्यूल भी चांसेस एग्जिस्ट कर रहा है, और हम मान के चले कि इंटर मिलान जीत जाती है वन ऑफ कॉन्टेस्ट में, चेल्सी के लिए कितना बड़ा मुश्किल होगा कि ना फॉरवर्ड है आपके पास, और आपका फॉरवर्ड लोन पे जाके चैंपियंस लीग जीत के आ रहा है, बट यू डोंट स्टिल डोंट वांट टू प्ले हिम। तो व्हाट डज इट से अबाउट चेल्सीज कंटिन्यूअल प्रॉब्लम्स विद देयर नंबर 9? या यही मैं कह रहा हूँ ना ये। और मैं एक और बात बता दूं, अगर इंटर मिलान जीत गया ना चैंपियंस लीग, तब भी लाइमलाइट इंटर मिलान पे नहीं रहने वाली, तब भी लाइमलाइट होगी ग्वार्डियोला पे कि वो फिर हार गया। कोई इंटर मिलान को नहीं पूछेगा, वो जीत जाएंगे चैंपियंस लीग, अगले साल वो क्लब वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे, पर तब भी मीडिया कवरेज बनेगी कि देखो पेप ग्वार्डियोला फिर से फाइनल हार गया।
तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और दूसरी बात, हाँ मतलब चेल्सी को तो यार कर्स है कोई, मतलब उनका नंबर 9 कभी नहीं चलता। और रोमेलू लुकाकू को अगर आप वैसे भी इस सीजन इंटर मिलान में भी देखो तो उसने कुछ बहुत कुछ किया नहीं है, पर अगर वो उसके हाँ अलावा भी जीत जाए चैंपियंस लीग तो काफी काफी कमाल की बात होगी कि वो वहां पे जाकर जीत गया। और चेल्सी का यार अब वही है कि डिस्कशन थोड़ा सा भटक जाएगा, बट चेल्सी की जो नंबर 9 की अप्रोच है, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि रोमेलू लुकाकू ने जो स्टेटमेंट दिया इंटर मिलान के लिए जब वो था चेल्सी में, ठीक है वो कंट्रोवर्शियल था और कोई भी फैन एंग्री होगा, सारी बातें ठीक है, बट मुझे लगता है कि उसको और टाइम देना चाहिए था। इतने ज्यादा मैनेजर्स जब चॉप एंड चेंज होते हैं, आप मुझे बात बताओ, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स चेल्सी के पास थे, सारे ही स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो रोमेलू लुकाकू से इतना ज्यादा हम्म। क्यों मतलब एंगर है? वो सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से यार हो गई गलती, मान ली यार, माफी। अब मुझे नहीं लगता कि रोमेलू लुकाकू वहां पे अनसक्सेसफुल होता अगर उसको प्रॉपर टाइम दिया जाता। अगर उसको प्रॉपर टाइम दिया जाता वो पक्का अच्छा करता, बट उसको टाइम ही नहीं दिया, तो फिर उस पर बात करने की चेल्सी फैंस ये बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है। भाई यार तुम्हारी मैनेजमेंट ने ही उसको हटाया ना, अगर उसको प्रॉपर टाइम देते हो पक्का चलता, बट दिस इज हाउ इट पॉज वर्क्स। पॉज 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 एसी मिलान इंटर मिलान में और बात कर। हाँ तो फिर नेक्स्ट टीम के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वेदांत का इसके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर है बिकॉज इट्स हिज फेवरेट इटालियन साइड। समर का सॉफ्ट कॉर्नर होगा बिकॉज इट्स जोजे मोरिनो साइड। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा बट जोजे मोरिनो के लिए हमेशा कुछ कॉर्नर तो रहेगा क्योंकि वो तो रहता ही है दिल में। तो रोमा नॉट was not doing great this season। बहुत बहुत मतलब सब स्टैंडर्ड डिस्प्ले बोल सकते हो, एकदम अच्छा नहीं कर रहा था। बट वही जो यूवेंटस का फाइनली आया वर्डिक्ट कि नीचे जाने वाले पॉइंट्स डिडक्शन, फिर से अब यूवेंटस नीचे चली गई। और दो जोजे मरीनो टुक अ स्टैंड, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि नहीं होनी चाहिए, इट इज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द थिंग दैट एलेग्री इज डूइंग। क्योंकि पहले आप 15 पॉइंट्स का डिडक्शन करते हो फिर आप उसको वापस कर देते हो, वो 2 पे चले जाते हैं। देन अगेन यू डिडक्ट कितना पॉइंट्स डॉक को इस बार 11, 10 10 10 11, 10। 10 डॉक10 पॉइंट्स। होने के बाद फिर से सेवेंथ में चली जाती है। अब सेवन में जाने के बाद रोमा आई थिंक गेम खेल चुकी थी उस वक्त तक या खेलने वाली थी, बहुत क्लोज टाइम पे मैसेज आया। तो फिर रोमा अब यूरोपियन स्पॉट्स पे थी नहीं, अब सिक्स में है जो कि कॉन्फरेंस लीग का फिर से स्पॉट है। लेकिन आपको भी पता है कि फाइनल जीत जाती है तो कहानी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। जोजी मोरिनो और एक स्टेटमेंट पे बोला कि रोमा का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि दे वर एक्सपेक्टिंग टू गेट अ चैंपियंस लीग बर्थ एंड दैट वाज द प्रायोरिटी। जोसे मोरिनो आके बोलता है नहीं ऐसा कोई प्रायोरिटी था नहीं, आई रिस्पेक्ट द प्रेसिडेंट बट मेरा दोस्त भी है, बट ऐसे कभी भी आप एक्सपेक्टेशन बदल नहीं सकते, मेरा तो कभी नहीं था। देयर आर मेनी पीपल हु प्ले यूरोपियन फाइनल्स वंस इन देयर लाइफ टाइम, तो मेरी टीम के लिए तो दो हो रही है, बहुत स्पेशल बात है। तो यही सब घुल मिल के बात आती है कि रोमा का इतना इंस्टेंट सक्सेस, एवरीथिंग एट्रीब्यूटेड टू जोसे मोरिनो गाइस। डेफिनेटली मुझे लगता है कि रोमा की सक्सेस के पीछे मोरिनियो का बहुत बड़ा रीजन है। आप देखो ना यार कि मोरिनियो के आने से पहले रोमा ने यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीती थी, और आते ही सबसे पहले उसने यूरोपियन ट्रॉफी जिताई। इस सीजन सब पार रहा है होम सीजन, ये बात सही है, लेकिन अगर यूरोपा जीत जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। यूरोपा जीत जाते हैं तो यार मेरे हिसाब से तो थर्ड या सेकंड भी फिनिश करने से बड़ा अचीवमेंट है ना। अगर आप यूरोपा लीग जीत जाते हो, पहली चीज, दूसरी चीज आपको चैंपियंस लीग में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलती है, आप दो यूरोपियन ट्रॉफी जीत गए 2 साल में, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा? और मोरिनियो के सिर्फ मैं शेयरली टॉकिंग, सिर्फ मोरिनियो के सेंस में बहुत अच्छा डिसीजन लगा था मुझे जब ये सीरिया गया था, और रोमा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट क्लब है। अब अगर आप देखो इसने अब एक बेंचमार्क सेट कर दिया, अगर ये रोमा में जीत गया ना यूरोपा, ये वापस प्रीमियर लीग आएगा, मुझे ऐसा लगता है ही विल कम बैक अगेन टू प्रीमियर लीग। और ये यार रोमा से अगर आप यूरोपा जीत गए और कॉन्फ्रेंस लीग जीत गए, इससे ज्यादा आपको अपनी क्लास मतलब आप दिखा नहीं सकते हो। और मेरे हिसाब से तो इट इज अ बिगर अचीवमेंट देन इवन पेप गार्डियोला विनिंग चैंप मतलब प्रीमियर लीग विद मैनचेस्टर सिटी। अगर ये यूरोपा जीत जाता है, 2 साल लगातार कॉन्फ्रेंस लीग जीतना और यूरोपा जीतना यार बहुत बड़ी बात है। ये आपको क्लास दिखाता है। और अगेन कमिंग बैक टू योर प्रीवियस पॉइंट कि खेला नहीं है कभी भी प्रोफेशनल फुटबॉल, सिर्फ हम्म। दिमाग, तो ये दिखाता है फुटबॉल ब्रिलियंस है ना। इसका मतलब ये वहां पे ऑन ग्राउंड प्रूफ कर रहा है कि आपको खेलना जरूरी नहीं है, अगर आप में फुटबॉल टैक्टिशियन वाला दिमाग है आप डेफिनेटली ब्रेक कर सकते हो।
और रोमा के साथ ये कर रहा और समर अगर अगर ये डबल कर लिया कि पिछले साल कॉन्फिडेंस, इस साल यूरोपा, अगले साल ऐसा ट्रेंड फॉलो करते हुए चैंपियंस लीग जीतना बहुत मुश्किल है। पर अभी सीरिया में जो चल रहा है और ये यूरोपीय कंपटीशन में जैसे आ रहे हैं ये लोग, कुछ भी कहना मुश्किल है, फाइनल तक तो जा ही सकते, पता नहीं, क्योंकि बजट भी बढ़ जाएगा ये वो। और बहुत लोग जोसे मourinho के अंडर खेलना भी चाहेंगे बिकॉज ही इज द अदर विजनरी देन पेप गार्डियोला। और अगर यहाँ पे सिटी जीत जाती है चैंपियंस लीग, वो जीत जाता है यूरोपा, सुपर कप में इन दोनों के बीच में फिर से हो सकता है। तो मे बी डबल ट्रॉफीज इस सीजन ही बन सकती है। सुपर कप को आप ले नेक्स्ट सीजन डालना चाहे तो डाल सकते हो, बट दो ट्रॉफीज आ सकती है। तो हाउ मच डू यू मिस जोसे mourinho अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, सीइंग ऑल दिस दैट ही हैज डन इन दिस एज? Well, to be very honest, even when Jose Mourinho was in Chelsea or in Real Madrid, so like there was never any doubt in his tactics or his sheer brilliance or his mentality because he's a serial winner, you know. Like there are specific managers जिनके मैं तो कह सकता हूँ कि उनके नाम के आगे आप सीरियल विनर लगा सकते हो। जोसे है, पेप है, तो मीत सर एलेक्स एज वेल। तो मतलब ये मैनेजर्स को पता है कि मतलब है ना गेम को कैसे ग्राइंड करना है, कैसे निकालना है। The best example I can give is the Roma versus Bayer Leverkusen second leg. Roma didn't even have one shot on target. They were not at all attacking because they knew they had a goal and they just wanted to defend it. Bayer Leverkusen under Xabi Alonso, who incidentally played under Jose Mourinho in Real Madrid. Okay, so Bayer Leverkusen were a better team. They attacked a lot. They were trying so hard for that goal, but they could never get it because who's on the other side? It's Jose. You know, he has that mindset. He knows कि भाई हमने एक गोल मारा हमारा अब हम सेकंड लेग में डिफेंड करेंगे, हम सीधा फाइनल खेलेंगे। This Mourinho लास्ट speaks ईयर volumes about him. लास्ट सीजन लेस्टर सिटी खेल रहा था कॉन्फ्रेंस लीग का सेमीफाइनल रोमा के अगेंस्ट, और फर्स्ट जो लेग था वो हमारे होम पे था, वो 0-0 फिनिश हुआ था, और सेकंड लेग रोमा के घर पे था। सेम चीज रोमा ने करी थी जो भी बैड लेवरकुसन के अगेंस्ट करी है। मतलब तब भी मास्टर क्लास था मोरिनियो का, एक गोल मारा था और उसके बाद बैठ गए पीछे। सारा का सारा अटैक हम बनाते रहे, कुछ भी नहीं हुआ, हम उनको ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाए। वो 1-0 की लीड पे बैठे और फाइनल में गए, वहां जीते। तो ये जो बट मोरिनियो समर की मास्टर, yeah. हाँ मतलब बोल ले, बट मैं एक बार पूछ लेता हूँ, तुम दोनों की ओपिनियन इस पे लूंगा कि जब जोसे मourinho यूनाइटेड पे था और जब ये पार्क द बस का कुछ ज्यादा ही नैरेटिव चल रहा था, उस टाइम पे इसको बहुत डिस्प्लीजिंग फुटबॉल या आइसोर के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा था रेदर देन अ फिलोसॉफी। कि नहीं मैनचेस्टर, मुझे याद है वो 2017 उस टाइम पे बहुत चल रहा था कि यूनाइटेड बहुत पार्क द अनप्लीजिंग बस। अनअपीलिंग फुटबॉल खेल रही है, ऐसा नहीं खेलना चाहिए, हम सो जाते हैं मैच देखते देखते। बट ही वाज गेटिंग, मतलब तुम्हारे लिए अब पता चल गया ना कि ट्रॉफीज कितना इंपॉर्टेंट था। अभी जाने के बाद ही पता चलता है, बट सर एलेक्स फर्गुसन, आप वो एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था जो कि आप शायद ही कभी रेप्लिकेट कर पाओगे। इट वाज वंस इन अ लाइक लाइफ परफेक्ट टाइम। टाइम, परफेक्ट, हाँ परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लेयर्स, परफेक्ट बंच ऑफ प्लेयर्स, वो कमांड, वो अथॉरिटी, वो रेस्पेक्ट, सब कुछ। वो किंगशिप जो था वो आप पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता मैं अपने लाइफ टाइम में किसी यूनाइटेड साइड से देख पाऊंगा। बट या यू हैव गुड प्लेयर्स, बट जोसे मरीनो क्रचेस पे वो टीम को ले जाके दे ओन अ टफ बैटल, और उसके बाद भी लाइक ट्रस्ट था नहीं। अभी एरिक टेन हाग मेरे को बहुत डर लगता है बोलने में, बट एरिक टेन हाग इज आल्सो अ विजनरी। हाँ, पर इफ थिंग्स गो साइडवेज, आप कंटिन्यूअली 7-8 मैच किसी सीजन में हिकअप आ गया, किसी वजह से हार रहे हो, do you think we just don't understand managers anymore and the media has a lot of part to play in it? क्योंकि वही आ जाते हैं कि जोसे मourinho, जो अभी हम ब्रिलियंस की बात कर रहे हैं कि डिफेंडिंग किया ये उस 17 के टाइम पे 2017 के टाइम में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था बाय द इंग्लिश मीडिया। तो योर टेक ऑन दैट? मैं ये नहीं चाहता कि मैं बोलूं, मतलब पहले तो मेरा इसके अंदर, पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ इसमें कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं, क्योंकि जब सब एज इन जनरल जो फैन बेस है, उन्होंने जब सर एलेक्स का टाइम देखा, तो देवर यूज टू बी कि भाई हम गेम को चलाते हैं, वी वी आर यूज टू बीइंग डोमिनेंट इन द गेम।
और मोरिनियो की जो फिलॉसफी है वो कभी भी पोजेशन बेस्ड नहीं रही बहुत ज्यादा. इट इज मोर कि काउंटर बेस्ड अटैक बनाना है, इधर उधर से गोल सेट पीस के थ्रू उन्हें कहीं से क्लिंच कर लेना और फिर उस लीड के ऊपर बैठ के डिफेंड करना है, ये वाली जो थी. और टॉटनहम हॉटस्पर्स के फैंस भी मैंने देखा एंड के अंदर काफी ज्यादा रेस्टलेस हो गए थे सेम चीज के ऊपर ही. तो जो ज़रूरी की ये वाली चीज थी, मुझे लगता है कि फैंस क्योंकि वो वाला जो सर एलेक्स वाला टाइम देख चुके थे, तो वो उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे कि हमने यूरोपा जीता या हमने कोई और ट्रॉफी जीती. उसको उसका कंपैरिजन डायरेक्टली वहां से चल रहा था कि भाई मोरिनियो तो इतना बड़ा नाम है, तो क्या हम सिर्फ ऐसे खेल के ट्रॉफी जीतना हमें नहीं सूट करता, हम डोमिनेट करना चाहते हैं, हम मैन सिटी टाइप मतलब टीम बनना चाहते हैं. पहली चीज मुझे लगता है एक तो ये रहा. दूसरी चीज जो आकाश बोल रहा था कि मोरिनियो के साथ इतनी जल्दी चीजें सॉर हो गई यूनाइटेड की, मुझे लगता है उसके साथ एक ये भी रीजन था कि मोरिनियो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था. जो भी बिहाइंड द कर्टेन चीजें मैनचेस्टर यूनाइटेड में हो रही थी, भाई मोरिनियो इन्हें इतनी बार बोला कि मेरा जो सेकंड आना मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अचीवमेंट था वो वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ माय करियर है. और उस टाइम पे जो फैंस थे वो ये बोल रहे थे कि यार इतना बड़ा मैनेजर सेकंड आने को इतना बड़ा बोल रहे हैं, हमारी फुटबॉल हेरिटेज तो देखो कि हम हमारी इतनी बड़ी फुटबॉल हेरिटेज है और ये सेकंड आने पे बोल रहा है कि इतना बड़ा अचीवमेंट है. बट मोरिनियो एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था कि तुम्हें पता नहीं है कि बिहाइंड द कर्टेन कितनी डीप प्रॉब्लम्स है. और फिर वो दिखा, मतलब बाद में जब ओले आया और उसके बाद जो रैगनिक के साथ हुआ, तो मुझे लगता है कि सारा का सारा एक मिक्सचर बन गया उसकी वजह से. और कहीं उसको वो एप्रिसिएशन नहीं मिली, जबकि मोरिनियो ने उस टाइम पे जो काम किया, अगर आप देखो जो बाद में खिचड़ी बनी है यूनाइटेड की, मोरिनियो का टाइम बहुत अंडररेटेड रहा है. पहली चीज मैं जो जोसे मourinho के इरा के बारे में कहना चाहता हूँ वो है कि हाँ मतलब उसका अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल नहीं था, बट देन ही गॉट अस दोज रिजल्ट्स. दूसरी चीज मतलब पहला सीजन जब वो आया था तो उसने हमारे साथ ईएफएल कप जीता था, जिसमें फाइनल में ज़्लातान ने 2 गोल मारे थे. देन कम्युनिटी शील्ड जीता था, वो तो लेस्टर के खिलाफ ही जीता था, आप लोगों को याद होगा. और हमने यूरोपा लीग भी जीता था. तो और वो सीजन जो भी यूनाइटेड में प्लेज आए थे जैसे पॉगबा या ज़्लातान इब्राहिमोविच या जो भी मतलब वो टाइम पे प्लेज या हेनरिक मकतारियन, तो ये सारे मतलब they I think they had a okay season. पहला सीजन जोसे का ओके था, लीग में हमने 6 फिनिश किया बट इट डिडंट मैटर सो मच बिकॉज वी वर इन चैंपियंस लीग एंड एवरीथिंग. सेकंड सीजन में जब आया तो फिर मेरे को लगता है तब से प्रॉब्लम होना शुरू हुआ बिकॉज उसके बाद ल्यूक शॉ को भी टारगेट किया. और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जोसे लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम. आई थिंक ही हैज दिस हैबिट ऑफ लूजिंग द ड्रेसिंग रूम, जहाँ पे भी रहता है वो, चेल्सी, टू रियल अग्रेसिव विद मैड्रिड. द प्लेयर्स. Too aggressive with the player. Then he lost the dressing room in Chelsea again when he came. Then he had difficulties with Eden Hazard, पता नहीं उनकी पूरी टीम. और फिर again United में, and I think that Pogba and Jose का जो rift था, I think that hurted Jose a lot. क्योंकि और मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड का भी माइंडसेट ऐसा होगा कि यार हमने मतलब इतने पैसे देके एक प्लेयर को खरीदा है, पॉल पॉगबा, एंड द मैनेजर इज नॉट प्लेइंग हिम, ही इज बेंचिंग हिम. और कहीं ना कहीं मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि आजकल के जो ओनर्स है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, तो दे लुक एट अ क्लब एज अ बिजनेस. लॉट ऑफ देम हैज इवन अग्रीड टू दिस इन अ कॉन्फ्रेंस. सो मुझे लगता है पॉगबा के साथ उसका इशू हो गया, ल्यूक शॉ के साथ उसका इशू हो गया. उसने एक इंटरव्यू में बोला भी, मुझे अभी भी याद है, द थर्ड सीजन, इवन सेड इन एन इंटरव्यू, ही सेड दैट प्लेयर्स आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग. You know, they are not playing the way they want. They're not playing the way I want them to play. You know, and then ESPN के ऊपर भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी उस वक्त. तो फिर उन्होंने बोला था कि why is he in the club? You know, and वो प्री सीजन टूर से ही उसका चालू था एंथनी मार्शल को लेके. तो yeah, it was it was a very sad ending for Jose, to be honest. But yeah, but there was like never a doubt about his tactical brilliance or his tactical genius, or I think he was the best manager we had, like in terms of trophies, if I specifically want to say. Yeah, agar if I want to speak a bit about football playing style, yeah, where fans felt a lot more connected, then I don't know, like give you a few other names, but yeah, you know, this was the part. Because after Sir Alex left, we were never able to replace him, neither with David Moyes nor with LVG.
Then there was Jose. Then we had Ole. Then Ragnick was a mistake in my eyes, of course. I don't know what others feel about it. And now we are again rebuilding with Eric Ten Hag. So specifically since last 10 years, since Sir Alex Ferguson left, Manchester United is rebuilding only. थोड़ा सा That is off the थोड़ा सा ऑफ हम्म टॉपिक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, बट मेरा तुम दोनों से एक सवाल है कि डू यू गाइस फील दैट rise of a club like Newcastle in terms of money and everything is a huge threat to Manchester United? I think it is. It is. देखो, about मतलब जैसे the point you touched कि can Newcastle be a big threat to Manchester United? Yes, definitely, because teams around us are evolving. They are doing better. Uh, पहले I still remember in the early 2000 there was Arsenal and United, top two teams. Then Chelsea took over, happened. Then Chelsea came in the picture. Then Liverpool were like always, near the top four spot. And now what has happened in the last few years, we even see teams like now Newcastle has got new investors. Now then suddenly Tottenham has in the last 5-6 years, developed a lot of talent, and then they are competing for the top four as well. So सबसे बड़ी प्रॉब्लम समर मुझे ये लगती है कि अभी जो तुम्हारा टेक ओवर होने वाला है, शेख का नाम भूल रहा हूँ, उसने शायद ये भी बोला है कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड या ग्लेजर्स बेचते नहीं है क्लब को तो आई विल बाय वेस्ट हैम। तो अगर yeah, वेस्ट हैम जैसा क्लब भी उस लेवल के एक्सपेंडिचर पे आ जाएगा, मतलब एक तरह से 8 क्लब्स हो जाएंगे, तो इट्स गेटिंग टफर एंड टफर। मतलब प्रीमियर लीग जीतना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो ऐसा बात नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स रिक्रूट नहीं करता। अभी इस साल भी उन्होंने एंथनी को लिया। Yeah, they got Anthony, they got Casemiro. I think Casemiro was a fantastic buy. मुझे लगता है कि वो बहुत क्रूशियल है यूनाइटेड के लिए। और ऐसा नहीं कि दे डोंट इन्वेस्ट इन प्लेयर्स, दे इन्वेस्ट इन नहीं, बट प्लेयर्स यार। तुम बट तुम तुम लोगों के साथ मेन इशू ये नहीं है ना समर, कि तुम पैसा नहीं खर्चते। तुम पैसा तो खूब खर्चते हो, लेकिन तुम मतलब एक बहुत प्रॉपर फंक्शनिंग फुटबॉल क्लब नहीं हो। प्रॉब्लम यही है ना सारी, कि भाई तुम्हारा ओल्ड ट्रैफर्ड पे जंग लग रहा है यार, सीधी सीधी बात करते हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड जितना हिस्टोरिकल मतलब जो स्टेडियम है, उसकी कंडीशन वहां के फैंस से जब भी दिखाते हैं, जो भी बिहाइंड द कर्टेन्स चल रहा है, बहुत पुअर कंडीशन है। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स है। पैसे की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, पैसा तो तुम इक्वली खर्चते हो। तो प्रॉब्लम वहां पे है सारी। तो इसका मतलब तुम्हें एक नई एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, और जो कि एक नए ओनर के अंडर ही आ सकती है। अगर रूट ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्लब बढ़िया करना है, तो अगर तुम्हें वो नहीं मिलता और तुम सेम ओनर्स के साथ चलते हो, जो कि तुम पिछले चल ही रहे हो 12 13 14 जितने भी साल हो चुके तुम्हें, तो वो तो तुम देख चुके ना रेसिपी, वो उसका अच्छा एंड रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा। तो अगर आसपास के क्लब्स के पास ऐसे ऐसे ओनर आ जाते हैं, तो पीछे नहीं रह जाओगे बहुत ज्यादा। मेरा क्वेश्चन ये है।